Dear students, in last class we studied about Bohr atomic model, means model of an atom given by Mr. Bohr. According to his theory, an atom is composed of positively charged nucleus and negatively charged electrons. According to this very theory, we used to say different electrons revolve around the nucleus and centripetal force is provided to different electrons by the electrostatic attraction between electrons and nucleus. Second point was only those orbits will be allowed for revolution of electron around the nucleus in which angular momentum of the electron will be integral multiple of h by 2 pi. Right? And third point was about stationary orbits. According to this very orbit, electrons will revolve in different orbits and they will not radiate energy. These non-radiating orbits are known as stationary orbits. And number fourth point was absorption of energy and release of energy can take place by an atom. When we give energy to an atom, then electrons go from lower state to higher state, and when electrons comes from higher state to lower state, then they'll release energy. We have studied all things in last class. Now we are going to discuss Bohr's theory of hydrogen atom. Means according to Bohr atomic model, what will be shape and size of hydrogen atom? In this very topic, we will study about radius. We used to say that different electrons revolves in different orbits with different velocities, right? Having different energies. Then we used to say that if any electron is in revolution in any orbit, then what will be radius of that very orbit? With what velocity that very electron will revolve? किस velocity से revolve करेगा? Right? What amount of time will be taken by that very electron? What will be their frequency and what amount of energy will be possessed by electrons in different permissible stationary orbits. We will study all these things in this very video. See this very figure. Here you have a nucleus or here you have an atom whose atomic number is Z. Whose atomic number is Z. तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाया गया है. अगर एटॉमिक नंबर Z है, इट मीन दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज Z. सो total positive charge which will be possessed by nucleus, that will be plus Ze, right? And let us suppose an electron E, which is negatively charged, having mass m, is in revolution around this very nucleus in radius r. इस r रेडियस में जो है यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है. कैसे रिवॉल्व करेगा? हम लोग यह कहते हैं कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है. देन वी यूज टू से सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज electrons, right? According to nuclear concept, we have studied that centripetal force provided to electrons, or you can say centripetal force will be provided to electrons due to attraction between electrons and positively charged nucleus. हमने यह पढ़ा है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है
तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन इज दिस कि हेयर इलेक्ट्रॉन्स आर इन रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, देन फ्रॉम वेयर विल इट गेट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग सीधी सी कह देंगे जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वह इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस force and this very force will provide necessary centripetal force, right? Then question is this कि what will be value of force, then we can write F will be equal to, अभी आपने देखा कि न्यूक्लियस में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज था that was ZE, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने R लिया था, so we can write F will be equal to K into ZE into E by R square, because we know that F equal to K Q1 into Q2 by R square. Here Q1 will be equal to ZE, Q1 मेरा ZE हो जाएगा और Q2 मेरा E हो जाएगा और डिस्टेंस R है, so we can write F will be equal to K into ZE into E by R square, which can be written as K into Z into e to the power 2 divided by R to the power 2, right? And we also know that centripetal force, अगर कोई massive body है m mass का which is in rotation along a circular path having radius r with v velocity v, then centripetal force needed for that is equal to mv square by r. तो यह जो सेंट्रीपिटल फोर्स इतना चाहिए और आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और जो फोर्स लग रहा है ट्रैक्शन फोर्स ये लग रहा है, इट मीन दैट वी कैन राइट mv स्क्वायर बाय r विल बी इक्वल टू k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाय r स्क्वायर, राइट? मीन्स नाउ यू हैव, आपने यह पा लिया जो है, क्या आपको मिला जो है एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के इंटू जेड इंटू ई टू द पावर 2 बाय आर टू द पावर 2. इसको आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, देन वी कैन गेट वैल्यू ऑफ आर एंड वैल्यू ऑफ आर कम्स आर इक्वल टू के इंटू जेड इंटू ई टू द पावर 2 बाय एम इंटू वी स्क्वायर. जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिस सर्कुलर पाथ में, उसका रेडियस होगा आर. जरा ध्यान से देखेंगे, हेयर के इज कांस्टेंट, जे इज कांस्टेंट, ई इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट, बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट नहीं है. इट मीन दैट अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अलग अलग होता है और जब v का वैल्यू वेरी करेगा देन इट इज श्योर दैट वैल्यू ऑफ r विल आल्सो वेरी. वैल्यू ऑफ r विल आल्सो वेरी, राइट? एंड देन नाउ कम ओवर अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटम कंडीशन, जो सेकेंड कंडीशन बोर साहब ने दिया था एंगुलर मोमेंटम वाला, अकॉर्डिंग टू दैट वेरी रूल व्हाट वी शुड राइट, एल विल बी इक्वल टू एम वी आर. कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, अगर एम मास का इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से आर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू एम वी आर. एंड वी कैन राइट एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, क्योंकि हमने यह पढ़ा था कि ओनली दोज ऑर्बिट्स विल बी possible in which revolving electron will possess angular momentum of integral multiple of h by 2 pi. It means that we can write mvr will be equal to nh by 2 pi, right? अब यहाँ से आप r का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, देन वी कैन राइट r विल बी इक्वल टू nh by 2 pi m into v, राइट? नाउ सी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, दोनों का LHS सेम है. इट मीन दैट RHS विल बी आल्सो सेम. RHS सेम हो जाएगा देन यू विल गेट एन इक्वेशन इन टर्म ऑफ V. देन यू विल गेट एन इक्वेशन इन टर्म ऑफ V. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट k इंटू जेड इंटू ई टू द पावर 2 बाय m इंटू v टू द पावर 2 विल बी इक्वल टू nh बाय 2 pi इंटू एम इंटू वी, विच विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से v का वैल्यू निकाल लीजिए तो देन वी विल गेट वैल्यू v इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू के इंटू जेड इंटू ई टू द पावर 2 बाय n इंटू एच.
इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल रहा है, 2 इज कांस्टेंट इन दिस वेरी इक्वेशन, 2 इज कांस्टेंट, k pi is constant, k is constant, e is constant, h is constant, only variables are z, only variables are z and n। अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, अलग अलग ऑर्बिट का जो है n अलग अलग होगा, राइट। तो अगर हम लोग इसको सारे कांस्टेंट को एक जगह कर दें, देन आप वी विल गेट इक्वेशन, इट विल बी इक्वल टू z बाय n इंटू, उसके अंदर जो रूट के अंदर आएगा 2 पाई k इंटू ई स्क्वायर बाय एच। इसका वैल्यू जो है, उस वैल्यू को लेट अस सपोज आई एम सेइंग v0, देन आवर एक्सप्रेशन विल बिकम v इक्वल टू z बाय n इंटू v0, और यह जो v0 का वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू 2.189 इंटू 10 टू द पावर 6। सी दिस वेरी इक्वेशन माइन्यूटली। इस इक्वेशन में आप z का अलग अलग वैल्यू लेंगे, n का अलग अलग वैल्यू लेंगे, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वैल्यू आएगा। इट मीन दैट नाउ आवर इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन ओनली z एंड n, z एंड n। v0 का जो वैल्यू हम लोग जब सारा कांस्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जा रहा है 2.189 इंटू 10 टू द पावर 6, राइट। Then now question is this, कि what will be velocity of electron in the first orbit of hydrogen atom? Then for come over for first orbit of hydrogen, for hydrogen we know that z equal to 1, for hydrogen we know that z equal to 1। और चलिए हम लोग ऑर्बिट नंबर 1 ले रहे हैं कि ऑर्बिट नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, राइट। देन व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन? तो आपने अभी फॉर्मूला लाया था v इक्वल टू v0, सॉरी, आपने फॉर्मूला लाया था v इक्वल टू z बाय n इंटू v0। हेयर z विल बी इक्वल टू 1, n विल बी इक्वल टू 1 इंटू v0 विच इज इक्वल टू v0, राइट। इट मीन दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू velocity of the electron in first orbit of hydrogen will be equal to v0 which is equal to 2.189 into 10 to the power 6 meter per second। It means that हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा उसका वैल्यू होगा 2.189 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब जो यह v का वैल्यू आ रहा है, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए r वाले इक्वेशन में, देन वी कैन गेट वैल्यू ऑफ r, राइट। एंड देन वी कैन राइट r विल बी इक्वल टू n इंटू h बाई 2 पाई m इंटू n इंटू h बाई 2 पाई इंटू k इंटू z इंटू ई टू द पावर 2 विच विल बी इक्वल टू, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा n स्क्वायर बाई z और कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग r0 कह दे रहे हैं। देन वी कैन राइट वी विल गेट r इक्वल टू n स्क्वायर बाय z इंटू r0 एंड वैल्यू ऑफ दिस r0 कम्स r0 इक्वल टू इतना जो वेरिएबल कांस्टेंट सभी आ रहा है उन सभी के बदले में हमने एक वैल्यू लिया r0, उसका आप वैल्यू फिल करेंगे सभी कांस्टेंट का, राइट। और उसको जो है एंगस्ट्रॉम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, देन इट विल कम 0.53 angstrom। It mean that we can write r will be equal to radius of different orbits will be equal to n square by z into r0, n square by z into r0। अब अगर हाइड्रोजन एटम के किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस इक्वेशन को यूज कीजिए। For first orbit of hydrogen, we know that z equal to 1, n equal to 1 and r equal to, then r will be equal to, आपने फॉर्मूला अभी लिखा था r equal to n square by z into r0, n is 1, z is 1, so it will be equal to r0 which is equal to 0.53 angstrom। It means that radius of first orbit of hydrogen will be equal to 0.53 angstrom,
राइट। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ हमको जो रेडियस का इक्वेशन मिला, वेलोसिटी का इक्वेशन मिला, दे आर इन टर्म ऑफ जेड एंड एम। हर एक एलिमेंट का जेड अलग अलग होता है, हर एक ऑर्बिट का एलिमेंट ऑर्बिट का नंबर अलग अलग होता है। तो किसी भी एलिमेंट के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस क्या है, वी कैन फाइंड इजीली, राइट, बाय यूजिंग फार्मूला। पहला फार्मूला हम लोगों को मिला था v का, v इक्वल टू जेड बाय एन इंटू वी जीरो, एंड रेडियस का फार्मूला मिला था r इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड इंटू आर जीरो, राइट। वी जीरो का वैल्यू हमने निकाला, आर जीरो का वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है, उस स्टैंडर्ड वैल्यू को याद रखेंगे और केवल जेड और एन पर हम लोग डिपेंडेंस दिखा करके बड़े आराम से निकाल जाएंगे, राइट। Now come over energy of different electrons. What will be energy possessed by different electrons in different orbits, as different electrons are in motion, so they should possess kinetic energy, and there is separation of different electrons from nucleus. So when we will consider nucleus, positively charged nucleus and electrons as system, then they will possess potential energy also. So now we will find, it means that all electrons will possess mechanical energy. Then question is this, what will be mechanical energy possessed by different electrons in different orbits, right? First come over kinetic energy of the electron. We know that kinetic energy of the electron Ek equal to half into m into v square, where m is the mass of the electron and v is velocity of the electron. तो v जो होता है हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग ऑर्बिट में अलग होता है, v का जो एक्सप्रेशन है उसको लिख दीजिए, देन इट विल कम k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई टू आर। v का जो एक्सप्रेशन आया था उस एक्सप्रेशन को लिख देंगे, देन योर एक्सप्रेशन विल बिकम Ek will be equal to k into z into e square by 2r, right? And potential expression of potential energy of the electron Ep will be equal to, हम लोग जानते हैं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 r डिस्टेंस से सेपरेट होता है, then potential energy possessed by them is equal to k into Q1 into Q2 by r. If both are similarly charged, then potential energy will be positive, but when they will be oppositely charged, when there will be force of attraction between them, then potential energy will be negative. Here we have to find potential energy possessed by a system of positively charged nucleus and negatively charged electron. So it is sure that potential energy will be negative. तो वैल्यू पुट करेंगे, then it will be equal to, क्योंकि एनर्जी निगेटिव होगा सबसे पहली बात, विल बी इक्वल टू के, Q1 का Z इंटू ई लिखेंगे, Q2 को E लिखेंगे बाय R, राइट। इट मीन दैट इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन K इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाय R, K इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाय R, राइट। So what will be total energy possessed by the electrons? So we can write total energy possessed by the electron will be equal to Ek plus Ep, which is equal to K into Zd square, which is equal to K into Ze square by 2r plus minus K into Zd square by r. जरा ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, और जितना न्यूमेरिकल वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का हटाएं तो जितना पोटेंशियल एनर्जी है उसका आधा काइनेटिक एनर्जी है, राइट। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी माइनस k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाय 2r. इट मीन दैट हेयर वी आर गेटिंग टू थिंग, Ek इक्वल टू Ep बाई 2, Ek का मैग्नीट्यूड जो होगा Ep का आधा होगा. It means that we can write Ep will be equal to 2Ek, Ep will be equal to 2Ek with minus sign, क्योंकि Ek always positive होगा, kinetic energy है, but here Ep is negative, right? And total mechanical energy
इज इक्वल टू हाउ मच, ई के बराबर है विद माइनस साइन, माइनस ई के, राइट। So E will be equal to when we, मेरा E आया है K into Z into E square by 2 into R. When you will fill value of R, then your expression will become E equal to minus 2 into pi to the power 2 into M into K to the power 2 into Z to the power 2 into E to the power 4 by N to the power 2 into H to the power 2, विच विल बी इक्वल टू, इसमें केवल वेरिएबल दो है जेड और एन, उसको मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, देन इट विल बिकम जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और बाकी सारे कांस्टेंट आ जाएंगे। सभी कांस्टेंट का जो है एक जगह करके उसको मैं लिख दे रहा हूँ ई ज़ीरो, एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ होल कांस्टेंट, देन इट विल बिकम 13.6, then it will become 13.6, and then we used to write E equal to Z square. We used to write E equal to Z square by N square into E0, where E0 equal to 13.6 minus 13.6 electron volt, right? इट मीन दैट हमने यहाँ पर जो है ई के भी निकाल लिया। अब तीन फार्मूला आया जो है, पहला आया जो है वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी का फार्मूला आया, एंड फार्मूला वाज v इक्वल टू जेड बाय एन इंटू वी ज़ीरो। वी ज़ीरो का वैल्यू याद रखेंगे, जेड बदलेगा एन बदलेगा, बड़े आराम से निकाल जाएंगे। आर इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड इंटू आर ज़ीरो, आर ज़ीरो का वैल्यू याद रखेंगे, एन और जेड बदलेगा, आपका हर एक ऑर्बिट का हर एक एटम का निकल जाएगा। एंड ई इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू ई ज़ीरो, ई ज़ीरो का वैल्यू याद रखेंगे, और आपको जो है जेड और एन वेरी करेगा, देन यू कैन गेट वैल्यू ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ डिफरेंट एटम, राइट। These three formula are very important because many questions can be solved by the help of these three formula, right? Now come over a spectral series of hydrogen atom. Question is this: what is a spectral series of hydrogen atom? Then we used to say, when we give heat to any atom, when we give energy to any atom, then different electrons which revolve around the nucleus get energy, and after getting energy they go in next excited state means they go in higher state, but that very higher state is highly unstable. But from here we can say, by giving energy to an atom, we can send any electron from its orbit to its higher orbit, right? But these higher orbits, which are also known as excited states, are highly unstable. ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। अगेन इलेक्ट्रॉन्स कम बैक टू देयर ऑन ऑर्बिट। जब अपने ऑर्बिट में आते हैं तो आपने जाने वक्त उसको एनर्जी दिया था, तो जब वो लौटेंगे तो दे शुड रिलीज एनर्जी। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एनर्जी in the form of radiation having some frequency, having some wavelength. It means that electron जब higher orbit से lower orbit में लौट करके आएंगे, then they will release energy. They will release energy of different wavelengths. Then that series of different wavelengths which we get, that is known as a spectral series, right? And we used to write, when an electron jumps from higher orbit to lower orbit, there is emission of radiation of some frequency and wavelength according to formula delta E equal to E2 minus E1। मान लीजिए E2 ऊपर वाला ऑर्बिट है, हाइयर स्टेट है, और E1 लोअर स्टेट है, तो E2 से E1 में आया, मतलब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया, तो उसका एनर्जी जितना होगा उतनी एनर्जी के बराबर का फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन
वेवलेंथ वाला रेडिएशन इमिट करेगा वो। एंड वी यूज टू राइट डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 बाय h न्यू इक्वल टू hc बाय लैम्डा, राइट। देन नाउ कम ओवर दिस इक्वेशन। आपने एनर्जी का इक्वेशन जान लिया है, तो यहाँ पर अगर आप सेकेंड n इक्वल टू जो है 2 दे देंगे और यहाँ n इक्वल टू 1 दे देंगे, तो आपको जो है ऑर्बिट नंबर का जो है एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ से हम लोग 1 बाई लेमडा निकालना चाहेंगे, देन वी कैन राइट 1 बाई लेमडा विल बी इक्वल टू 1 बाई लेमडा विल बी इक्वल टू जो एनर्जी में एक्सप्रेशन आएगा, मान लीजिए E2 जो है उस N2 ऑर्बिट का एनर्जी है और E1 जो है N1 ऑर्बिट का एनर्जी है। तो जब डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, देन द एक्सप्रेशन विच यू विल गेट, वी विल गेट 1 बाई लेमडा इक्वल टू, मीन्स फ्रॉम दिस वेरी इक्वेशन वी कैन राइट 1 बाई लेमडा इक्वल टू 2 इंटू पाई टू द पावर 2 इंटू m इंटू k टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर 4 बाय c इंटू एच क्यू इंटू 1 बाय n1 to the power 2 minus 1 by n to the power 2, right. It means that we can write 1 by lambda equal to, इतना कांस्टेंट को एक मैं नया नाम दे रहा हूँ r, we can write 1 by lambda equal to 1 by n1 square minus 1 by n2 square. It means that when an electron will jump from N2 orbit to N1 orbit, then the radiation which will emit, wavelength of that very radiation will be equal to this, means which can be obtained by this relation, right. And then we used to write 1 by lambda equal to r into 1 by n1 to the power 2 minus 1 by n2 to the power 2. Here r, जो हमने पूरे कांस्टेंट को एक नाम दे दिया r, that very constant is known as Rydberg constant. That very constant is known as Rydberg constant, whose value is 1.0973 into 10 to the power 7 meter minus 1, means meter inverse, right. See here. तो यह जो स्पेक्ट्रम मिलेगा कोई भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ सकता है इलेक्ट्रॉन, राइट। तो लेट अस सपोज किसी भी हायर ऑर्बिट से n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, किसी भी हायर ऑर्बिट से मीन्स सेकेंड ऑर्बिट से, थर्ड ऑर्बिट से, फोर्थ ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 1 में आ रहा है। तो सबसे पहले सोचिए, मान लीजिए कि सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है, तो उसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ होगा रेडिएशन का वो इमिट करेगा। जब n इक्वल टू 3 से 1 में आएगा तभी इमिट करेगा, n इक्वल टू 4 से 1 में आएगा तभी इमिट करेगा, राइट। तो जो है n इक्वल टू एनी हायर ऑर्बिट से जब फर्स्ट में आता है इलेक्ट्रॉन, तो जितने भी रेडिएशंस बनेंगे सबको एक सीरीज में नाम दिया गया। इन सभी रेडिएशंस के बारे में सबसे पहले जो है मिस्टर लैमन ने बताया था और उन्हीं के नाम पर से उन सारे वेवलेंथ्स का एक सीरीज बनाया गया, एंड दैट वेरी सीरीज इज नोन एज लैमन सीरीज। इट मीन दैट लैमन सीरीज consist of all those wavelengths which are emitted by an electron when they come from n equal to any orbit from 2 to higher to ground state, means to n equal to 1, right. And second series is your Balmer series. Balmer series में क्या होता है कि n इक्वल टू किसी भी हायर ऑर्बिट से n इक्वल टू 2 ऑर्बिट में आता है, n इक्वल टू 2 में 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। इट मीन दैट वी कैन से व्हेन Balmer series consist of all those wavelengths which is emitted by an atom when electrons jump from any higher orbit from n equal to 3 to higher to n equal to 2, right. In the similar manner हमारे पास Paschen सीरीज है, जब n equal to 3 पर आता है कोई भी हायर ऑर्बिट से,
जब n इक्वल टू 4 पर आता है कोई हायर ऑर्बिट से तो वह ब्रैकेट सीरीज कहलाता है, और n इक्वल टू 5 पर आता है किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन, तो जो वेवलेंथ मेरे निकलेंगे उस वह जो वो सभी आएंगे फंड सीरीज में, हुज स्पेलिंग इज P इंटू में P F U N एंड D, राइट। Come over Lyman series. We used to say when an electron jumps from higher orbit n2 equal to 2, 3, 4 to lower orbit n1 equal to 1, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होगा n2 कोई भी हायर ऑर्बिट 2, 3, 4 से n1 इक्वल टू 1 पर होगा, तब जो हमको सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, दे आर कॉल्ड Lyman सीरीज, दे आर कॉल्ड Lyman सीरीज एंड विच बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो यह जो सभी वेवलेंथ होगा उसका जो है किस रीजन में लाई करेगा, देन दे कम इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, राइट। सेकेंड वन इज योर, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन वी कैन राइट 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर इंटू 1 बाय n1 इक्वल टू 1 फिल कर देंगे, इट मीन दैट इट विल बी इक्वल टू आर इंटू 1 बाय 1 टू द पावर 2 माइनस 1 बाय n2 to the power 2, where n2 will be equal to either 2 or 3 or 4 dot 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 dot. Second one is your Balmer series. Balmer series क्या है? Then we used to say when an electron jumps from higher orbit n2 equal to 3, 4, 5 to lower orbit n1 equal to 2, then the set of spectral lines which we get, they come in Balmer series, and this very Balmer series, all these wavelengths come in visible region, right? Come in visible region. Formula will be 1 by lambda equal to r into 1 by n1 equal to 2 देंगे, 1 by 2 to the power 2 minus 1 by n2 to the power 2, where n2 will be equal to 3, 4, 5 anything, right? Next is your Paschen series. यह पास्सन सीरीज क्या होगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट n2 जब 4, 5, 6 ये सब होगा और n1 इक्वल टू 3 पर जो है जंप करेगा, तो उस समय जो रेडिएशन निकलेगा, दैट ऑल विल कम इन पास्सन सीरीज एंड ऑल दीज वेवलेंथ्स लाई इन इंफ्रारेड रीजन, ऑल दीज वेवलेंथ्स लाई इन इंफ्रारेड रीजन, राइट। नेक्स्ट इज योर ब्रैकेट सीरीज। इसमें जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऊपर वाले ऑर्बिट n2 इक्वल टू 5, 6, 7 होगा, n2 इक्वल टू 5, 6, 7 होगा, 5, 6, 7 होगा, और लोअर ऑर्बिट n1 इक्वल टू 4 पर आकर के आएगा, तो उस समय जो जितने भी स्पेक्ट्रल सीरीज निकलेंगे, मीन्स जितने भी वेवलेंथ्स निकलेंगे, दे कम इन ब्रैकेट सीरीज and all these wavelengths come in infrared region. Formula will be 1 by lambda equal to r into 1 by n1 के जगह हम लोग 4 डाल देंगे, 1 by 4 to the power 2 minus 1 by n2 to the power 2, where n2 will be equal to 5, 6, 7 etc, right. Next one is your fund series. फंड सीरीज, इसमें क्या होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट n2 इक्वल टू 6, 7, 8 टू लोअर ऑर्बिट n1 इक्वल टू 5, जब 6 से 5 पर आएगा, 6 से 5 पर आएगा, 7 से 5 पर आएगा, 8 से 5 पर आएगा, तो जो वेवलेंथ निकलेगा, ऑल दीज वेवलेंथ्स कम इन फंड सीरीज, और ये सभी वेवलेंथ जो लाई करते हैं, दे लाई इन इंफ्रारेड रीजन, राइट। Formula will be 1 by lambda equal to r into 1 by 5 to the power 2 minus 1 by n2 to the power 2, where n2 will be equal to 6, 7, 8, 9 like this. Now come over energy level diagram for hydrogen. अभी हमने यह कहा है formula of energy is n square by z square
into E0 means minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड में वेरी, एन में वेरी, हम लोग जो है हाइड्रोजन के लिए चल रहे हैं, इट मीन दैट जेड विल बी इक्वल टू 1, राइट। जेड विल बी इक्वल टू, सॉरी, फॉर्मूला विल बी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, फॉर्मूला विल बी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो जेड तो मेरा 1 हो जाएगा, एन विल वेरी, इट मीन दैट जैसे जैसे मेरा एन बदलेगा तो ऑर्बिट नंबर बदलेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट में उसका एनर्जी भी बदलेगा, राइट। देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी एनर्जी पोजेस्ड बाय दोज इलेक्ट्रॉन्स, उन सभी जो एनर्जी का जो है उससे लेकर के हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, एंड दैट वेरी डायग्राम इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन, राइट। ये है क्या? देन वी यूज टू से इट इज अ डायग्राम इन विच द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स, it is a diagram in which energies of different stationary states of an atom are represented by parallel lines, parallel horizontal lines drawn according to some suitable scale, right। तो पहले हम लोग यह देखेंगे कि एनर्जी होगा कितना कितना। We know that energy of an electron in nth orbit of hydrogen is equal to E equal to Z square by N square into minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो हाइड्रोजन के लिए Z1 डाल देंगे व्हेन वी विल फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम लोग मान लीजिए एनर्जी को E1 कह रहे हैं, देन इट विल बी इक्वल टू minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी कितना होगा, देन इट विल बी इक्वल टू जेड तो हमको 1 डालना है, माइनस 13.6 बाय एन इक्वल टू 2, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4, सो इट विल बी माइनस 13.6 बाय 4 विच विल बी इक्वल टू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड ऑर्बिट विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 बाय 3 टू द पावर 2 विच विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 बाय 9 which will be equal to minus 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा सा देखिए यहाँ जो एक्सप्रेशन है आपका En इक्वल टू माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर, इट मीन दैट जैसे जैसे ऑर्बिट मेरा बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे मेरा ऑर्बिट बढ़ते जाएगा यह क्वांटिटी छोटा होता जाएगा, बट माइनस साइन के साथ है, इट मीन दैट यू कैन से एनर्जी मेरा बढ़ता जाएगा, माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.15 और इस तरह से व्हेन n विल बी इन्फिनिटी देन एट दैट टाइम E विल बी 0, मीन्स maximum energy possessed by an electron will be in infinity orbit, will be in infinite orbit, and that very energy will be 0, right। An electron can have only now see energy level diagram, एनर्जी लेवल डायग्राम जरा देखिए। सी दिस वेरी डायग्राम, हमने क्या कहा था, एनर्जी लेवल डायग्राम जो है हॉरिजेंटल लाइन से बनाया गया डायग्राम है, वो हॉरिजेंटल लाइन ऑर्बिट नंबर बताता है, और वह जो है कितना, वह जो बनाया गया है लाइन जो है, जो एनर्जी डिफरेंस जो फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। देन सी हेयर यू हैव n इक्वल टू 1, यहाँ n इक्वल टू 1 है, और इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी पोजेस कर रहा है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर n इक्वल टू 2 एनर्जी है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। n इक्वल टू 3 माइनस 1.51, in this manner n equal to 4, 5, 6, 7 like this, and energies of different orbits are given here, means इस किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कितना एनर्जी पोजेस करेगा, दैट इज गिवन। नाउ कम ओवर जंपिंग, सी हियर लाइमन सीरीज को देखिए, हमने क्या पढ़ा था, व्हेन ट्रांसफर ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट फ्रॉम 2, 3, 4, 5 टू ऑर्बिट नंबर 1 विल टेक प्लेस, देन दैट विल कम इन लाइमन सीरीज। तो देखिए तो यहाँ से ऑर्बिट नंबर 2 से 1 में आया, 3 से 1 में आया, 4 से 1 में आया, 5 से 1 में आया, all these will come in Lyman series, and all radiations will be in ultraviolet region,
इन द सिमिलर इन द इन केस ऑफ बामर सीरीज, इसमें क्या होता था, n इक्वल टू 2 से 1 में आए, सॉरी 3 से 2 में आए, 4 से 2 में आए, 5 से 2 में आए, मीन्स एनी हायर ऑर्बिट फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी टू ऑर्बिट नंबर 2 टेक्स प्लेस इन केस ऑफ बामर सीरीज। और जो सभी रेडिएशन निकलेंगे उसका जो वेवलेंथ होगा दैट विल बी lie in visible region, likely in the Paschen series, in the bracket series, in fund series we find, right? Now come over this very point. An electron can have only certain different values of energy while revolving in different orbits. मतलब कि जो है यह सभी एनर्जी देखने से लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो वह पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस करेगा, मीन्स हर एक एनर्जी को पोजेस नहीं करेगा। दैट्स वाई here it is written an electron can have only definite value of energy while revolving in different orbits, and this very theory is known as energy quantization, means energy जो रहेगा पैकेट के फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, the energy state corresponding to n equal to 1 has the lowest energy equal to minus 13.6 electron volt. This state of orbit is also called ground state or normal state, right? And when an electron jumps from ground state to any higher state, then all these higher states are known as excited states. All these higher states are known as excited states, right? Now come over few terms. एक्साइटेशन एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेशन एनर्जी? तो सीधी सी बात, जैसा नाम है वैसा ही डिफिनेशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उसके ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाले स्टेट, जिसको हमने एक्साइटेड स्टेट नाम दिया, अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, देन देयर इज नीड ऑफ एनर्जी। कितना एनर्जी जरूरत है? दैट वेरी एनर्जी इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। That very energy is known as excitation energy, and we used to write the energy required by an electron to jump from the ground state to any of the excited state is known as excitation energy. The energy required by an electron to jump from the ground state to any of the excited state is known as excitation energy. Then question is this, what will be the excitation energy of the electron? What will be first excitation energy of hydrogen? तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा? अपना उसका ग्राउंड स्टेट N1 है और N2 में चला गया है, मीन्स ऑर्बिट नंबर 2 में चला गया है। कितना एनर्जी देना पड़ेगा? तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? तो एनर्जी देने के बाद N2 में गया है तो उसकी एनर्जी अधिक होगी। सो एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू E2 minus E1, which will be equal to minus 3.4 minus 13.6, which will be equal to 10.2 electron volt. It means that 10.2 electron volt energy is required for electrons to go from ground state to first excited state in case of hydrogen. Similarly, second excitation energy of hydrogen will be equal to E3 minus E1. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो कौन सा होगा? सेकेंड। ऑर्बिट नंबर 2 फर्स्ट हुआ, ऑर्बिट नंबर 3 सेकेंड होगा, देन फॉर्मूला विल बी E3 minus E1, E3 minus E1, right? E3 minus E1 which will be equal to minus 1.51 minus 13.6 which will be equal to 12.09 electron volt, right? नाउ कम ओवर आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसा नाम वैसा ही डिफिनेशन। आयोनाइज होने में कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? दैट वेरी एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइज करने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, एकदम ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, सभी ऑर्बिट से, अंतिम ऑर्बिट से भी, मीन्स n इक्वल टू इन्फिनिटी से भी बाहर निकल जाए। देन डिफिनेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम। एटम से एकदम बाहर निकालने के लिए, एटम से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट वेरी एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट? दैट वेरी एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। देन क्वेश्चन इज दिस, व्हाट विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन? हम लोग क्या लिखेंगे?
इन्फिनाइट ऑर्बिट में पहुंचाए हैं E1 से, देन इट विल बी इक्वल टू E इन्फिनिटी माइनस E1 विच विल बी इक्वल टू 0 माइनस 13.6 which will be equal to 13.6 electron volt. It means that in case of hydrogen 13.6 electron volt of energy is required. 13.6 electron volt of energy is required to ionize hydrogen atom, right? Now come over excitation potential. आपने यह पढ़ा है, अगर दो पॉइंट है और अगर एक इलेक्ट्रॉन को इसका पोटेंशियल V1 है और इसका लेट अस सपोज पोटेंशियल डिफरेंस इज V, तो अगर इलेक्ट्रॉन को हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना है तो कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? EV। कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? EV। तो पूछा यह जाता है कि कितना पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाए कि जो है वह EV एनर्जी गेन कर ले, राइट? कितना पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाए कि EV एनर्जी गेन कर ले, तो भी पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाए, राइट? तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है कि अगर ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 2 में ले जाना चाह रहे हैं, देन देयर इज नीड ऑफ एनर्जी, देयर इज नीड ऑफ एनर्जी, देयर इज नीड ऑफ EV। तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोग को जो है इसको एक्सेलरेट कराएं कि वह जो है ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 2 में चला जाए, राइट? तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस से कह देंगे? तो एनर्जी कितना का जरूरत है? 1 से 2 ले जाने में हमको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जरूरत पड़ा, 1 से 2 ले जाने में हमको, फर्स्ट से सेकेंड में ले जाने में हमको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जरूरत पड़ा था। मीन्स कैन बी राइट 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 10.2 वोल्ट। इसका मतलब कि हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को इतना वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो इतना एनर्जी गेन कर लेगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट जाने में इतना एनर्जी हमको देना पड़ा था तो कितना पोटेंशियल से हमको एक्सेलरेट कराए थे? 10.2 वोल्ट से। तो यहाँ जो डिफिनेशन होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल का, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय विच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू गो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल से हम लोग इसको एक्सेलरेट कराएं कि वह जो है ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। तो हम लोग इसको निकालेंगे क्या? जितना एनर्जी का ज़रूरत है वहाँ से हम लोग E हटा देंगे तो जो बचेगा वही वोल्ट हो जाएगा और उतना ही ज़रूरत पड़ेगा, राइट? देन फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन will be equal to -3.4 -13.6 which will be equal to 10.2 volt. Likely in the same way second excitation potential means 1 से 3 में ले जाने के लिए कितना पोटेंशियल का जरूरत पड़ेगा? then that will be equal to 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? Now come over next topic, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइज करने के लिए कितने पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी? तो आयोनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसमें से E हम लोग रिमूव कर देंगे। द पोटेंशियल बाय विच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू आयोनाइज द एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। Then ionization potential of hydrogen will be equal to ionization energy 13.6 electron volt हुआ था, then ionization potential will be 13.6 volt, right? Okay my dear.